देन रिकनेक्ट द चार्जर एंड ट्राई पावरिंग ऑन। अगर ये नहीं होता तो सेकंड स्टेप ये है कि चेक रैम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे रैम का टाइप जो भी है DDR3, DDR4 या DDR5। Then we will check supported speed in megahertz as per motherboard या लैप स्पेसिफिकेशन। इंश्योर करेंगे कि करंट वोल्टेज जो है कंपैटिबिलिटी है, और incompatible RAM can prevent the from completing a post। उसके बाद हम लोग अवॉइड करेंगे मिक्सिंग ऑफ RAM modules, like we will not mix RAM with different brands, different speed या different voltage और different capacities। और उसके बाद चेक करेंगे प्रॉपर सेटिंग ऑफ रैम, remove and reinsert RAM firmly until locking click into place। improper setting is one of the most common causes of boot failure। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है क्लीन रैम स्लॉट्स एंड इंस्पेक्ट मदरबोर्ड। we will clean RAM slots using air blower। फिर check motherboard for dust, paint, pins or physical damage। ensure slot is not damaged। Then the sixth step is test with vulnerability only, install vulnerability in the primary slot, try booting the system, repeat with another slot is available। उसके बाद सेवन स्टेप है identify faulty RAM। if the system still does not start after all checks, test RAM in another compatible system। if it fails there is a RAM is faulty and needs replacement। ये ओके। हमारा पहला चीज था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम नॉट स्टार्टिंग आफ्टर हार्ड ड्राइव हार्ड रिप्लेसमेंट। ड्राइव रिप्लेस, ओके। तो उसका स्टेप था, पहला स्टेप था कि चेक फिजिकल कनेक्शन, सेम we will power off the system completely, open the cabinet and open the cabinet या laptop cabinet, uh, reset the hard drive, ensure SATA and NVMe connector is firmly connected, check power cable for HDD or flash SD, try a different SATA port cable if available। Second step है verified drive detection in BIOS। enter BIOS UEFI, like for every system there is a different one, so we will press like F1 2 key and depends on the manufacturer। Then check is the new hard drive detected, if not detected possibility is there that there is a faulty drive or cable, and if detected then continue troubleshooting। Then the third step is check boot mode, which is a UEFI versus legacy। Confirm the boot mode matches the operating system installation type। In this Windows installed in UEFI, we have to boot mode must be UEFI। Windows installed in legacy MBR, then boot must be legacy CSM। Mismatch, if there is a mismatch, common cause of boot failure। Fourth step is check disk partition style, which is a GPT versus MBR। Boot using Windows USB command prompt disk part list disk, then check under GPT column GPT UEFI required, no star means MBR legacy required। Then fifth step is verify boot order या boot priority in BIOS boot section। Ensure Windows Boot Manager for UEFI is first, or set the hard drive first for legacy systems। Save changes and reboot। Sixth step is check if operating system is installed of the new drive। If the hard drive is brand new, it will not boot until an OS operating system is installed। Boot using Windows installation using USB. Check if Windows is using repair, startup repair. Case 1, Windows is detected. It says something like attempting repairs, diagnosing your PC, or it asks you to select a Windows installation. This confirms Windows exists on the hard drive. Case 2, Windows is not detected. Then the message will be like startup repair couldn't find a Windows Couldn't installation, find Windows. or Okay, it yeah. finishes immediately without repair। This means Hmm. Windows is not installed or partitions are missing या corrupt। Uh, Seventh step, run startup repair Windows। First boot from Windows bootable USB. Select repair your computer. In this, many of the pop-ups will come like troubleshoot, advanced options, startup repair. Then let Windows Yeah. fix missing boot files, corrupted boot configuration. That's it. That means if you have started the startup repair, that just let it be completed. Hmm. Okay. Yeah. Okay. Yeah. That should be it. And I think, okay, this much only, right? We have discussed. Manap? Yes, Okay, sir. everyone. Very good. So Ankit, yeah, very good. See, just I want all of you know, I want only Ankit only shares like what we have discussed in the last class. Other people also, सभी को बताना है, ठीक है? From the next session, I will ask any one of you to share, like tell me like what we have discussed, okay, in the previous session. Okay? Yeah.
ओके सर। क्लियर? क्लियर, ओके। हम्म। सो सिस्टम नॉट स्टार्टिंग आफ्टर रैम इंस्टॉलेशन, वी हैव सीन सो मेनी स्टेप्स, राइट? कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टम अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो? प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, वही सारे स्टेप्स है, राइट? And if suppose the system is not starting after hard drive replacement, hard drive in the sense like our SSD or our HDD, right? So if you have newly installed a new SSD like once, or a new SSD like a new HDD, whatever, and your system is not booting, then how we can troubleshoot it, right? So इसमें होता है SSD का प्रॉब्लम होगा, या तो बैटरी का ही प्रॉब्लम हो सकता है। लैपटॉप में या पीसी में बैटरी का प्रॉब्लम होता है तो हमें लगेगा कि एसएसडी खराब हो गया। कोइंसिडेंस हो सकता है ना, कोइंसिडेंस लाइक मींस कि you just installed a new RAM, you just installed a new SSD, and you experience that your laptop is not turning on, your PC is not turning on. So what we will think like, we will think like our SSD is creating some problem, the new RAM is creating some problem. But in the behind, like it is, it may happen that the battery or the SMPS in the desktop can create some problems. है ना? If not, then maybe the RAM problem, then maybe the SSD problem, because the question is only that only, right? The ticket is only that. कि system not starting after hard drive replacement, or the system not starting after RAM installation. That is the thing, right? Okay. All right. ठीक है bro. So that's all for the yesterday, and then today we'll be discussing the first troubleshooting, that is your monitor on but no display. No display issue, black screen issue, whatever. Okay. Thank you. So today we have first here monitor on but no display. ठीक है. Uh, just a minute. मतलब क्या हो रहा है? हम लोगों ने पीसी ऑन कर दिया, ठीक है? वी हैव, हम लोगों ने ऑन किया, स्विच ऑन किया। मॉनिटर का जो लाइट होता है वो ग्रे चल रहा है, ठीक है? मॉनिटर में लाइट होता है ना, रेड रेड ग्रीन ऐसा शो होता है ना? सो व्हाइट कलर का या जो भी लाइट है, मॉनिटर का लाइट चल रहा है, बट कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है ना, मैन्युफैक्चरर का लोगो आ रहा है या कुछ भी, एंटायर ब्लैक, ठीक है? नो डिस्प्ले। What I am saying, let's you to power on your PC or the laptop, and you do not see any kind of display, anything on either on the screen. No any boot logo, no Windows logo, no operating system, no BIOS board, nothing. Total entire black screen, okay, or no display. So how we can, what can be the problem here, है ना? What can be the cause and how we can troubleshoot this problem? पहले इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है everyone, जिसको बताइए, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इस केस में, बिकॉज ऑफ विच लाइक बिकॉज ऑफ विच हार्डवेयर कंपोनेंट वी कैन फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? Is it because of processor? No. Is it because of NIC? नो ना। तो कौन सा हार्डवेयर है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आएगा, बताइए? सर सबसे पहले तो अगर डिस्प्ले ऑन है तो डिस्प्ले खराब हो सकता है। ठीक है। उसके ओके। बाद उसके बाद सर कभी कभी सर एक चीज होता है जो मतलब हमारा जो वायर जो करंट होता है मदरबोर्ड से वो भी लूज हो सकता है। ओके, या मॉनिटर मॉनिटर केबल, ओके ठीक है। सर उसके बाद सर ये हो गया वो चीज। फिर सर एक सर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ पॉइंट्स होता है जो मिसिंग हो सकता है कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। सिस्टम जैसे कि मतलब ओके। कुछ फाइल्स होते हैं सर जो करप्ट हो जाते हैं तो फिर वो नहीं कर चलता है क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा था। हाँ। ठीक उसके है। बाद सर केबल तो चेक कर लेंगे। हाँ, ओके। हम्म। सर रैम का भी इशू हो सकता है। रैम का इशू हो सकता है, एग्जैक्टली, है ना? उसके ठीक है, बाद देखिए। सर एस एम हाँ। पी एस का भी इशू हो सकता है। SMPS, नहीं, SMPS का इशू होता है ना, तो पता है क्या होगा SMPS में? SMPS का इशू नहीं रहता है, क्योंकि आपके मॉनिटर पे पावर सिग्नल आ रहा है ना, लाइट तो आ रहा है ना, लाइट तो जल रहा है ना,
मतलब मतलब इलेक्ट पावर तो आ रहा है ना, सब पावर सप्लाई है, तो एसएमपीएस का प्रॉब्लम नहीं होता फिर, ठीक है। हम्म, ये हम लोग, हमारा इशू ही क्या है कि मॉनिटर ऑन हो चुका है, आवर इशू इज लाइक मॉनिटर इज ऑन बट नो डिस्प्ले। तो हेयर लाइक द मोस्टली द रैम प्रॉब्लम, ठीक है, रैम का इशू होता है, और आइदर डिस्प्ले इज फॉल्टी, डिस्प्ले खराब हो चुका है या तो रैम का प्रॉब्लम है, बस यही चीज होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। एसएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे आपने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर करप्टेड, so obviously you will not see the operating system getting booted, but you will see the BIOS board। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो मॉनिटर में कम से कम डिस्प्ले दिखेगा आपको, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखेगा बट बायोस मोड तो दिखेगा ना कम से कम। आपका जो भी कंपनी का लैपटॉप है या पीसी है या जो भी है, उसका मैन्युफैक्चरर का लोगो आएगा, स्टार्ट होगा, वो बायोस मोड में ओपन होगा, तो वो कम से कम डिस्प्ले तो आ रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है स्क्रीन पे। तो वो एसएसडी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मॉनिटर ऑन ऑन नहीं हो रहा है ना, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, ना एसएसडी का प्रॉब्लम है, ना ये एसएमपीएस का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मॉनिटर ऑन हो रहा है तो, ठीक है। इफ मॉनिटर इज ऑन, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर एसएसडी और लाइक एसएमपीएस, ओके, ये चीज। सी सो हाउ वी कैन, अच्छा, इसको ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, कोई बताइए तो अभी को क्या क्या करेंगे हम लोग इसमें। सर ट्रबल शूट जो आपने कल बताया था कि हम लोग बूट बायस मोड ऑन करेंगे, वहां से ट्रबल शूट हो सकता है। ठीक है, बट बायोस मोड भी नहीं ओपन हो रहा है ना, डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है, डिस्प्ले है ही नहीं, मतलब टोटल फेलियर हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, पूरा ब्लैक हो गया, स्क्रीन ब्लैक, ठीक है, ऐसा समझिए, ब्लैक स्क्रीन। सर केबल ट्रबल शूट चेक मतलब करेंगे। वही ना सर, कोई प्रॉब्लम कैसे इसको ठीक करेंगे। रैम को और खोल के और रिपेयर लगाओ क्लीन हाँ, करके। ठीक है, रैम को रीइंसर्ट करेंगे आफ्टर क्लीनिंग, ओके, रीइंसर्ट द रैम आफ्टर क्लीनिंग द स्लॉट्स एंड द रैम स्टिक्स, ओके। और इसका जो केबल है, बीजे केबल और जो केबल लगता है इसमें भी, इसको भी चेक करेंगे। हम्म, सर ठीक है, सबसे वेरी पहले गुड। तो ग्राफिक देखेंगे कार्ड कि अवेलेबल मतलब है कि लूज नहीं। केबल्स अगर कुछ है तो उसको ठीक करेंगे। सॉरी। सर लूज केबल्स है तो उसको ठीक करेंगे। ओके, लूज केबल, ओके। हम्म। चेक करेंगे ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है कि नहीं। ग्राफिक्स कार्ड ठीक है, बट देखिए ग्राफिक्स कार्ड अगर आप रिमूव कर देते हैं ना एक सिस्टम से, तब भी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या रहता है, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स रहता है, और हम्म। डिस्प्ले कम से कम दिखेगा, स्क्रीन वगैरह दिखेगा, ठीक है, बायोस मोड वगैरह दिखेगा, वो अरे सब दिखेगा। हम्म। सर ग्राफिक्स कार्ड तो कहाँ से आ गया। हाँ, वही है, ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉब्लम नहीं कंफ्यूज रहता है इसमें। मतलब। हाँ, सर ग्राफिक्स कार्ड। हाँ। ऐसा मैं कंफ्यूज हूँ। सर दीजिए केवल चेक करेंगे। हम्म। हाँ, बीजे केबल, डिस्प्ले केबल बेसिकली, ओके। हाँ, वेरी गुड। यस। देखिए क्या होता है, सिंपल है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर पावर एक्टिविटी सिम्टम्स, ठीक है, कि आपको पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर सप्लाई नहीं आएगा, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल। If power supply is not there, that what is the problem? बैटरी और एसएमपीएस प्रॉब्लम, राइट, लैपटॉप में बैटरी और पीसी में एसएमपीएस। अगर पावर सप्लाई ही नहीं है, लाइट ही नहीं चल रहा है मॉनिटर का, सीपीयू का लाइट भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, एसएमपीएस में, राइट, है ना। और केबल, so if you don't have any power activity symptoms, that means you are having a problem in the laptop battery or the in the PC text SMPS problem. Okay, so that is what we have to check whether the fans are spinning or not. Power LED on or off. ठीक है, फैन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, राइट। एलईडी लाइट जो होता है डिस्प्ले वगैरह में, सीपीयू में जो एलईडी है वो ऑन है या नहीं है, राइट। कीबोर्ड बैकलाइट और कैप्स लॉक लाइट इज रेस्पॉन्डिंग और नॉट, है ना। बैकलाइट कीबोर्ड है या कीबोर्ड बैक कैप्स लॉक का की होता है, ऑन करके देखिए वहां पे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑन हो रहा है मतलब पावर सप्लाई है, ठीक है। इफ द कीबोर्ड backlit keyboard is getting on or the caps lock key light is getting on, that means power supply is there। कोई किसी भी तरह का बीप साउंड आ रहा है क्या, एनी काइंड ऑफ बीप साउंड इज देयर इनसाइड इन द लाइक मड सिस्टम और नॉट। बीप साउंड्स हेल्प यू टू इंडिकेट लाइक व्हाट इज द हार्डवेयर प्रॉब्लम, राइट, है ना। सो ये सारा चीजें चेक करते हैं, सब फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक इट। नाउ यू आर इंश्योर्ड दैट अ पावर सप्लाई इज देयर, अब आपको पता चल चुका है कि पावर सप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर सप्लाई में कोई इशू नहीं है, ठीक है। सीपीयू का लाइट जल रहा है, मॉनिटर का भी लाइट जल रहा है, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तब इस केस में क्या करते हैं, व्हाट वी डू, टेस्ट विथ एक्सटर्नल डिस्प्ले, ठीक है। तो एक दूसरा डिस्प्ले लेना है कोई सा भी ले सकते हैं, मॉनिटर है या कोई पीसी का मॉनिटर है, कोई दूसरा डिस्प्ले। सो वी हैव टू कनेक्ट अ एक्सटर्नल डिस्प्ले, ठीक है। कैसे कनेक्ट होगा बताइए तो ऑल ऑफ यू। हमारा लैपटॉप है या कोई पीसी है, वहां पे दूसरा एक्सटर्नल डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करेंगे।
HDMI के HDMI और VGA केबल का थ्रू। HDMI or VGA cable, very good. So nowadays we are using HDMI cable only. Mostly we use HDMI, right? VGA cables are also can be used, but if you don't have the option for VGA cables, then do not, we cannot use it. So that is the thing. Okay. So this is how you can connect to a external monitor to your laptop or your PC like this, and just try to सर run that VGA text. केबल्स वो हो गया क्या जो इसमें रेड ग्रीन और ब्लू रहता है, मतलब येलो रेड और ब्लू रहता है? नहीं, VGA केबल आपका उसमें ना छोटा छोटा डॉट्स, छोटा छोटा पिंस का डॉट अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है 7 या ठीक 8 ऐसा, हाँ, छोटा छोटा पिंस रहता है। है, मतलब जो पहले वो, लगता था मॉनिटर वगैरह में। हाँ ठीक है सर, समझ गया। हाँ ठीक है। वो डीवीडी वगैरह में लगता था पहले, क्या? वो जो येलो कलर, रेड कलर हाँ का हाँ हाँ, समझ पिन गया था। भाई। ओके, सी सो वी हैव टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले लाइक दिस। लैपटॉप में भी कर सकते हैं, पीसी में भी। पीसी में तो सिंपल है ना। लैपटॉप में जस्ट यूज HDMI केबल और VGA केबल, वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल डिस्प्ले लाइक दिस। अब करना क्या है ना, वी हैव टू सी दैट लाइक वेदर योर एक्सटर्नल डिस्प्ले इज गेटिंग ऑन और नॉट। ये ऑन हो रहा है कि नहीं, ऑन हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल जो डिस्प्ले हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है ना, वो ऑन होना चाहिए। ऑन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इफ सपोज इट इज नॉट टर्निंग ऑन, दैट मीन्स योर हार्डवेयर प्रॉब्लम इज देयर। हार्डवेयर में कहीं पे प्रॉब्लम है, हमारे डिवाइस में ही कहीं पे हार्डवेयर प्रॉब्लम। ओके, इफ द डिस्प्ले इज टर्निंग ऑन, देन हार्डवेयर इज ओके, योर डिस्प्ले इज फॉल्टी। ठीक है, अगर ये दूसरा मॉनिटर ऑन हो गया मतलब हार्डवेयर ठीक है हमारा, डिस्प्ले ही खराब हो चुका है फिर, है ना। सो दैट थिंग ओनली आई हैव रिटन हियर, सी। सो कनेक्ट एन एक्सटर्नल मॉनिटर और यूजिंग HDMI और VGA केबल, है ना। एंड एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले काम कर रहा है, राइट, दैट मीन्स कि आपका केबल इशू हो सकता है या डिस्प्ले का इशू हो सकता है। ओके, और इफ द एक्सटर्नल डिस्प्ले आल्सो इज नॉट वर्किंग, दैट मीन्स ग्राफिक्स कार्ड प्रॉब्लम और रैम इशू और मदरबोर्ड इशू। ठीक है, तो ये चीज, दैट इज द थिंग। ओके, सो ये चीज पहला स्टेप करना है। सबसे पहला काम यही करते हैं कि हमें इससे पता चल जाएगा, लाइक थ्रू दिस वी कैन नो लाइक वेदर आवर डिस्प्ले इज फॉल्टी और आवर हार्डवेयर इज एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर इज फॉल्टी ओनली। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी डू ऑल ऑफ यू, वी परफॉर्म द हार्ड रीसेट। ठीक है, एक बार हार्ड रीसेट करेंगे। देखिए लैपटॉप में कैसे करते हैं हार्ड रीसेट, रिमूव द बैटरी, राइट, सेम स्टेप यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है। जस्ट वी रिमूव द बैटरी एंड देन इंसर्ट द बैटरी फॉर आफ्टर 1 और 2 मिनट्स, और 1 या 2 मिनट तक रख सकते हैं। ठीक है, या 30 to 40 सेकंड्स में भी काम हो जाएगा। ओके, सो रिमूव द बैटरी, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 30 to 40 सेकंड्स एंड देन ट्राई कनेक्ट द चार्जर एंड ट्राई टू पावर ऑन द सिस्टम। बैटरी रिमूव करना है एंड देन क्या करना है, पावर ऑन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे 30 से 40 सेकंड्स तक। स्टैटिक चार्ज पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है, चार्जर कनेक्ट करना है एंड फिर पावर ऑन करना है लैपटॉप। बैटरी कनेक्ट नहीं करना है, चार्जर पे ही रन करके देखना है पहले। ठीक है, अगर रन कर रहा है तब बैटरी बाद में कनेक्ट करके देखिए, तो डिस्प्ले आ गया, दैट इज ओके देन। ओके, सो ये चीज करना है। दिस इज इन द लैपटॉप, इन इन सच a लैपटॉप वेयर यू कैन नॉट रिमूव अ बैटरी। कब क्या करते हैं, पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप की। ओके, पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप की, दिस इज द थिंग। चेक फॉर एनी काइंड ऑफ बीप साउंड्स, राइट, वही बीप साउंड आपको चेक करना है। लुक केयरफुली फॉर एनी काइंड ऑफ बीप साउंड, चेक फॉर पोस्ट फेलियर, राइट, क्योंकि बीप साउंड होगा ना तो हो सकता है पोस्ट फेलियर होगा। और पोस्ट फेलियर का एक सिम्टम होता है ब्लैक स्क्रीन का इशू होता है। ठीक है, सो व्हेन यू फेस द ब्लैक स्क्रीन इशू, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पोस्ट फेलियर। ठीक है, पोस्ट फेलियर के वजह से भी ब्लैक स्क्रीन का इशू या फिर नो डिस्प्ले का इशू आता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट जस्ट चेक फॉर पोस्ट फेलियर, चेक फॉर पोस्ट एनी बीप साउंड, है ना। दैट इज द थिंग, है ना। सो वी हैव टू जस्ट फिक्स द प्रॉब्लम। अगर बीप साउंड आ रहा है तो बीप साउंड को सुनना है ध्यान से, लाइक व्हाट बीप कोड्स आर कमिंग ओवर देयर, एंड जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन फिक्स द इशू। रैम का इशू है तो रैम को फिक्स करेंगे, है ना। दैट इज द थिंग, मोस्टली रैम का इशू रहता है। तो इस केस में रैम के लिए क्या करते हैं, जस्ट वी रीसेट द रैम, राइट। What you do, reset the RAM, remove the RAM stick, and then reinsert the RAM stick after cleaning the RAM slots and cleaning the RAM stick with eraser। ठीक है, रैम का स्लॉट को क्लीन करना है, रैम का जो स्टिक है उसको इरेजर से क्लीन करना है। एंड इफ यू हैव मल्टीपल रैम्स देन ट्राई विथ वन सिंगल रैम ओनली। अगर दो से ज्यादा रैम लगा हुआ है या मल्टीपल रैम से दो रैम स्टिक लगा हुआ है, तो एक ही रैम स्टिक पे ट्राई करना है सिस्टम को ऑन करने का। ओके, दिस द थिंग। सो दीज आर ऑल ट्रबल शूटिंग व्हाट वी परफॉर्म ऑल ऑफ यू फॉर डिस्प्ले नॉट टर्निंग ऑन। ठीक है, अब इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब टेक्नीशियन को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो हो सकता है कि कोई मदरबोर्ड पे कोई कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई कंपोनेंट डैमेज हो चुका है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो these are all the troubleshooting gears. Check for power activity symptoms. पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है ना, मतलब पावर सप्लाई नहीं आ रहा। इफ यू आर नॉट गेटिंग द पावर सप्लाई, दैट मीन्स द नो
नो एलईडी लाइट ब्लिंकिंग, नो एनी फैंस, है ना, फैन स्पिन नहीं कर रहा है, या एलईडी लाइट भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। कैप्स लॉक लाइट ऑन कर रहे हैं, वो भी ऑन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स पावर फेलियर। और पावर फेलियर जब होता है तो सबसे पहले हम लोग लैपटॉप में चेक करते हैं बैटरी को, और पीसी में क्या चेक करते हैं? एसएमपीएस, राइट? एसएमपीएस, है ना। SMPS। एग्जैक्टली, पावर फेलियर हुआ तो सबसे पहले वही चेक करना है, बैटरी और एसएमपीएस। ओके, इफ यू फेस द पावर फेलियर, बैटरी और एसएमपीएस। कैसे पता चलेगा पावर फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? लाइट वगैरह से पता चल जाएगा ना। व्हेन यू टर्न ऑन योर पीसी और व्हेन यू टर्न ऑन योर लैपटॉप, यू सी अ लाइट, है ना, एलईडी लाइट जलता है साइड में कहीं पर भी कोने में होगा, राइट? इफ नो एलईडी लाइट इज देयर, नो फैन इज स्पिनिंग स्पीड, मतलब फैन भी स्पिन नहीं कर रहा है, तो ये सारा सिम्टम होता है बेसिकली पावर फेलियर का। ठीक है, इससे पता कर सकते हैं। ओके, या सो दीज आर ऑल द स्टेप्स, टेक द स्क्रीनशॉट। डन एवरीवन, ठीक है। डन सर। ओके, Done। देखिए अभी, ओके ठीक है। Now we have more issue everyone that no bootable device found. So ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, this is like so complex, सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा है इसमें, ठीक है। So no bootable device found, device found, see all of you। अच्छा ये what is a bootable device here, ऐसा इशू आ रहा है, राइट? ये टिकट का, ऐसा टिकट रेज किया गया है, या फिर या ऐसा इशू आ रहा है स्क्रीन ऑन, मतलब पीसी ऑन कर रहे हैं, सपोज वी आर टर्निंग ऑन द लैपटॉप और द पीसी एंड वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ एरर मैसेज, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, राइट? इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले? अच्छा, बूटेबल डिवाइस क्या है, एनीवन बताइए तो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। सर एक सॉरी, पेन ड्राइव होता है। बड़ा फाइल को मतलब छोटा करके उसको छोटा बनाते हैं, उसको बूटेबल बोलते हैं। ओके, ओके, ठीक है। देखिए, bootable device in the sense all of you, a component, a storage unit from where we can boot the operating system। एक ऐसा स्टोरेज यूनिट जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा सकते हैं। तो बूटेबल डिवाइस में हमारा एसएसडी को ही बूटेबल डिवाइस कह रहे हैं। एसएसडी, our SSD, our HDD, these are only the bootable devices। और अब पेन ड्राइव को भी तो bootable पेन ड्राइव बोलते हैं ना, तो bootable डिवाइस, ठीक है। तो bootable डिवाइस इन द सेंस ऑल ऑफ यू आर एसएसडी ओनली, आर एचडीडी ओनली, जो स्टोरेज है हमारा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है? एसएसडी में ही रहता है, एचडीडी में ही रहता है, राइट? So just where you are having the operating system, that storage unit is only called as a bootable device, है ना। And when you face the issue of no bootable device found, that means your SSD is having any problem। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये किसका प्रॉब्लम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, या तो आपका एसएसडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए एसएसडी की बात करेंगे क्योंकि एचडीडी उतना यूज नहीं होता है, और पेन ड्राइव यूज करके थोड़ी ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है। चलिए टेम्पररी तो यूज कर सकते हैं ना, टेम्पररी पर्पज के लिए पेन ड्राइव को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए। बट क्या हमेशा पेन ड्राइव पे ही रन करते हैं क्या? नहीं ना, एसएसडी वगैरह नहीं यूज सर। करते हैं। हाँ, so that is the thing कि we use SSDs just to run the operating systems in our PCs, laptops, everywhere, right? So that's why I'm just talking about that. If you face this kind of problem, no bootable device found, that means your operating system is corrupted, your operating system is having any problem, or your SSD is having any problem। तो ये जो प्रॉब्लम होता है या तो SSD का है या तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। दिस थिंग इज, है ना, either SSD problem, either operating system problem। So what can be the problems? So many types of problems are there, right? Either your SSD is faulty, SSD खराब हो गया है, right? Boot order is incorrect, boot mode is incorrect, partition style is incorrect, okay, operating system not detected, operating system is corrupted, operating system boot files is missing, so many things can be। okay, जो जो हम लोग ने ट्रबल शूटिंग देखा था ना, सिस्टम नॉट स्टार्टिंग आफ्टर हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट, सो वहां से कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा। सम ऑफ द स्टेप्स यू विल फाइंड कॉमन फ्रॉम द ट्रबल शूटिंग ऑफ सिस्टम नॉट स्टार्टिंग आफ्टर हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी चेक ऑल ऑफ यू, दैट बूट ऑर्डर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसका इशू क्या हो सकता है कि बूट ऑर्डर जो है ना वो इनकरेक्ट है। करेक्ट बूट ऑर्डर क्या होता है? वही बूट ऑर्डर है लाइक मींस की इन द UEFI Windows boot manager should be at the first position, and in the legacy BIOS the hard drive should be at the first position। This is the correct boot order। हार्ड डिस्क और एसएसडी नॉट डिटेक्टेड, अगर ये डिटेक्ट नहीं हो रहा तो वही इशू आएगा, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। ओके, इफ योर एसएसडी इज नॉट डिटेक्टेड,
is equal to no bootable device found problem. Okay, simple. ऑपरेटिंग सिस्टम बूट फाइल्स आर करप्टेड। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं। बूट फाइल्स क्या होता है कि वैसा फाइल होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सोया हुआ है तो उसको जगाता है बेसिकली, ऐसा समझिए, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है, ये हमारा कौन करता है, फर्मवेयर करता है। कैसे होता है, बूट फाइल्स के थ्रू होता है। तो बूट फाइल्स अगर करप्ट हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं हो पाएगा, ऑन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ द बूट फाइल्स आर करप्टेड देन यू कैन नॉट boot your operating system. Okay, so that's why. So I'm just saying that the OS boot files are corrupted. है ना? Wrong boot mode. Boot mode I just showed you, know, everyone. Like in the UEFI, in the legacy BIOS, we have a boot mode setting in the BIOS mode only, which we have to select UEFI or the legacy based on the type of firmware which we are having in the system, right? Lose or failed HDD or SSD. SSD क्या है कि खराब हो चुका है, तो SSD is faulty or maybe SSD is लूजली फिटेड, है ना। ऐसा हो सकता है कि एसएसडी ठीक से कनेक्ट नहीं किया गया सिस्टम में, है ना, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खराब हो चुका है, ठीक है, या फिर वो वही चीज है, ठीक है। सिक्योर बूट ब्लॉकिंग द ओएस। देखिए अच्छा, ये सिक्योर बूट क्या होता है, वो एवरीवन ये आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक। और सिक्योर सर बूट, जब यूपीआई सिलेक्ट करते हैं नीचे आता है सिक्योर। सिक्योर बूट आता है, ठीक है। व्हाट इज दिस सिक्योर बूट? वो एडिशनल कुछ लेयर होगा उसको सिक्योरिटी के लिए। Okay, see. So this secure boot is basically a security feature which is only found in the UEFI, not in BIOS. ठीक है, legacy BIOS में ये feature नहीं है. In UEFI only you have this feature of secure boot. करता क्या है basically? It is a security feature which helps your operating system to boot securely. Operating system को securely boot करने में help करता है ये. ठीक है, this is the thing. Secure boot feature only in UEFI. Okay. And last we can say fresh laptop is there, operating system is not installed. अब नो बूटेबल डिवाइस का मतलब हो सकता है कि या तो एसएसडी आपका सिस्टम में आपने लगाया नहीं है, या लगाया है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, either you have inserted your SSD or if you have inserted the SSD then it is not having the operating system, then you can face the problem of no bootable device found. So these are all the causes, ठीक है। ये सारा क्या है, causes है ये प्रॉब्लम, ये नो बूटेबल डिवाइस का। ओके, सी ट्रबल शूटिंग में आएंगे। लाइक व्हाट ट्रबल शूटिंग वी डू फर्स्ट, वन बाय वन ऑल ऑफ यू सी। फर्स्ट ये चेक करना है whether your SSD or your HDD is detected in the BIOS mode or not, है ना। So we have to go to BIOS mode and here in the BIOS mode only we have to check whether your SSD is detected in the BIOS mode. कैसे चेक, मतलब ये चेक करना है कि SSD जो है ना BIOS mode में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो हमारा SSD है, ठीक है। तो हमें क्या जाना पड़ेगा, बायस मोड में जाना पड़ेगा, राइट, है ना। सो वी हैव टू गो टू द बायस मोड एंड वी हैव टू चेक वेदर आवर एसएसडी इज डिटेक्टेड और नॉट। सो हाउ टू गो टू बायस मोड, कैसे जाएंगे बायस मोड, बताइए। या हाउ टू ओपन द बायस मोड, ऑल ऑफ यू बताइए। अभी Can't start the system and डिलीट एस्केप pressing BIOS प्रेसिंग key. बायस की यूजिंग बायस की यूजिंग बायस की, एंड व्हाट इज द बायस की? F2, F10, एस्केप डिलीट F2 escape, F10. F2 also F12. ओके, Depends F10, on brands F2, of the computers. एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर ब्रांड, राइट। तो आप लोगों में से किसी ने चेक किया है कि आपके लैपटॉप में बायोस की क्या है? हैव यू Yes, गाइस sir. चेक? Yes. क्या ये है सर बताइए, बताइए आपका लैपटॉप कौन सा है, बताइए। डेल का सर डेल का लैपटॉप है, Sir, ओके। उसमें आप ठीक है, डेल में क्या है बायोस की? डिलीट ऑप्शन भी एस्केप भी डिलीट है और एस्केप है ना। ओके ठीक है, हाँ, और क्या है बताइए, एनीवन? sir, Lenovo का F2. लेनोवो में F2 है, ओके ठीक है। एंड डेल हो गया, लेनोवो हो गया, और एचपी ASUS में या भी F2 है आसूस? सर, F2। F2 है, ओके ठीक है, very good, ठीक है। So what we have to do, love you, if you want to open the BIOS mode we have to restart the system, and then when your system is getting booted, so at that time you have to press the BIOS key, है ना, or you can repeatedly press the BIOS keys, then you will automatically enter into the BIOS mode। एक कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली आपको पता है कहाँ पे बायस क्यू प्रेस करना है, वहां पे प्रेस कर सकते हैं, या फिर नहीं पता है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे प्रेस करना है, सो रिपीटेडली प्रेस कर सकते हैं, है ना। व्हेन योर सिस्टम इज टर्निंग ऑन, प्रेस द बायस की रिपीटेडली until the BIOS mode opens, ठीक है। सो व्हेन यू विल गो टू द BIOS mode, ओके सी यहाँ पे क्या हुआ, विंडोज लोड हो गया, मैंने डिले कर दिया थोड़ा सा, दोबारा से करते हैं इसको।
Okay, wait. Okay, mouse is like not. Okay, let's see. So when you come to the BIOS mode or the UEFI mode or the boot manager, okay, you will see your SSD. ठीक है, आपको आपका SSD दिख जाएगा. Like you can see here, it is my SSD detected. है ना? So this is NVMe virtual namespace SSD. Like this is an okay virtual SSD. NVMe है ना? Namespace NSID1. This is a virtual SSD which is this virtual machine owns. Okay, but in the real system you will see your real SSD, right? So this is how you can check. है ना? तो मतलब ऐसा समझिए कि यही मेरा SSD है. ये मेरा SSD यहाँ पे दिख रहा है. रियल सिस्टम में भी यहाँ पे ऐसे जाइएगा. लाइक यू कैन गो टू द बायस बोर्ड एंड यू कैन चेक द नेम ऑफ योर एसएसडी इज देयर और नॉट. अगर वहां पे एसएसडी नहीं दिखता है, इफ यू डोंट सी द एसएसडी नेम ओवर देयर, दैट मींस एसएसडी इज नॉट कनेक्टेड और मे बी इट इज फॉल्टी और मे बी इट इज लूजली कनेक्टेड. ओके, दैट इज द थिंग. सो पहला काम यही करना है कि आपको ये चेक कर लेना है कि आपका एसएसडी डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिस्टम में. राइट, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस. हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी मिनट. Okay, see, so that is the thing. Just check your SSD is detected in the BIOS mode or not. है ना? कैसे करेंगे? BIOS मोड पे जाना है, आपको देख लेना है कि आपका SSD का नाम वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ठीक है, दैट इज. हाँ, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वेरीफाई द बूट ऑर्डर. है ना? बूट ऑर्डर चेक कर लेना एक बार. व्हाट इज द करेक्ट बूट ऑर्डर इन द यूएफआई? ऑल ऑफ यू बताइए तो. इन यूएफआई व्हाट इज द करेक्ट बूट ऑर्डर और व्हाट इज द करेक्ट बूट ऑर्डर इन लेगेसी BIOS? UEFI, in the UEFI, Windows Boot Manager should be at the first position, right? In the UEFI, Windows Boot Manager should be first, right? Yes, sir. And in the With legacy BIOS, hard drive hard should be drive. first, right? तो ये चीज हम लोग ने देखा था, like this thing is there. See, as you can see, this is a UEFI. अगर आपको ये देखना, ये शो करे ना, ये कौन सा है? ये UEFI. If I show you UEFI, how to check? See, if I go to settings, if I go to options and advanced, सो यू कैन सी ऑल ऑफ यू, यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, लेगेसी बायोस का है और एक यूएफआई का है. तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है यहाँ पे? यूएफआई सेलेक्टेड Yes, है, sir. राइट? दैट, हाँ, दैट मींस दिस वर्चुअल मशीन इन द बैकग्राउंड यू कैन सी दिस वर्चुअल मशीन इज रनिंग ऑन यूएफआई मोड. बट बायोस वाला वर्चुअल मशीन कौन सा है? ये वाला है. ओके, इफ आई ओपन द पावर ऑन द वर्चुअल मशीन व्हिच इज रनिंग ऑन बायोस एंड लेट अस गो टू द बायोस मोड. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. See, now that we are on the BIOS boot menu basically, and if I show you like see everyone, इसका क्या है मतलब कौन सा firmware है? So what's the firmware BIOS, type? legacy BIOS. This is BIOS. If I go to Right. advanced, you can see इसमें से दो option है. There are two options and this is selected to BIOS. BIOS selected है ना? So ये BIOS है, ठीक है? ये जो virtual machine है, this is running on BIOS basically. Okay. So this is basically this is UEFI. This is legacy BIOS. So in the UEFI, you can see the Windows Boot Manager is at first. सबसे पहले में ना Windows Boot Manager. And in legacy BIOS, the hard drive is at the first. राइट, सो ये करेक्ट बूट ऑर्डर रहता है. ये बूट ऑर्डर करेक्ट है मतलब, ठीक है? तो यही आपको चेक कर लेना. अगर नहीं है तो उसको चेंज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको शो किया था एंटर सेटअप में. फिर चेंज बूट ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना? सेटअप में एंटर करना है पहले. वी हैव टू एंटर द सेटअप एंड देन चेंज द बूट ऑर्डर. ठीक है, अगर नहीं है तो, राइट? नाउ सी ऑल ऑफ यू. सो आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, चेक द बूट मोड एंड चेक द पार्टीशन स्टाइल. दो चीज चेक कर लेना है, बूट मोड एंड पार्टीशन स्टाइल. ओके, so what Yes. is the if say everyone, if you have legacy BIOS, then what should be the boot mode? MBR.
नहीं, वो डिस्क पार्टीशन स्टाइल है। आई एम जस्ट BIOS. आस्किंग अबाउट द boot, हाँ, BIOS only, right? If you Yeah. have legacy BIOS, then the boot mode should be BIOS, and if you have the UEFI, then what should be the boot mode? GPT. जीपीटी UEFI नहीं, You वो have पार्टी, हाँ, वो डिस्क पार्टीशन स्टाइल की बात कर, वो आप डिस्क पार्टीशन स्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क पार्टीशन स्टाइल का मैं नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मैं बूट मोड के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। बूट मोड मतलब वही चीज है, फर्मवेयर का जो टाइप रहता है वही है आपका बूट मोड। इफ यू हैव लेगेसी बायोस, देन द बूट मोड शुड बी लेगेसी बायोस BIOS. ओनली। हाँ, लेगेसी ओनली, है ना। और इफ यू हैव यूएफआई, देन द बूट मोड शुड बी यूएफआई। ओके, द बूट मोड यू कैन फाइंड इट हियर ना एवरीवन, लाइक इफ आई शो सर यू। क्या मतलब, सर बूट मोड होगा तो बायोस होगा और यूएफआई मोड होगा तो यूएफआई होगा, नहीं समझ। देखिए क्या होता है, फर्मवेयर अलग अलग होता है, बायोस रहता है, एक यूएफआई रहता है, ठीक है। तो बूट मोड सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका बूट मोड मतलब आपका फर्मवेयर कौन सा है ना। तो हम्म। जो हमारा जो फर्मवेयर के अंदर सेटिंग्स रहता है बायोस मोड के अंदर, उसको बताना पड़ता है कि आपका जो होगा ना फर्मवेयर मतलब किस तरह काम कर रहा है, लेगेसी बायोस की तरह काम कर रहा है कि यूएफआई की तरह काम कर रहा है। तो मोड को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका है यूएफआई या फर्मवेयर, तो उसमें मोड जो सेलेक्ट करते हैं यूएफआई सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तब जाके वो प्रॉपर यूएफआई की तरह काम करेगा, ठीक है, तो वो होता है। ओके सर, ओके सर। हाँ, see, so this is the boot mode. You can go to the main advanced input output here. Boot section is there, and you can check UEFI और legacy BIOS boot mode. यहाँ पे यस। boot mode का ऑप्शन मिल जाएगा, you can select आपके फर्मवेयर के हिसाब से जो भी boot mode है होगा वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओके। जस्ट सेलेक्ट द करेक्ट boot mode, है ना। सी, so this is the boot mode, what we do, what we select correct, है ना। एंड इसके बाद क्या करना है, डिस्क पार्टीशन स्टाइल, वी हैव टू चेक द डिस्क पार्टीशन। अब हाउ टू चेक द डिस्क पार्टीशन स्टाइल, ऑल ऑफ यू? कमांड प्रॉम्प्ट में, राइट, सिंपल yes, जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, वहां MS पे हमें Info दिख जाएगा। 32. हाँ, नहीं, एमएस में वो 32 नहीं, डिस्क पार्टीशन स्टाइल चेक करना है ना। तो उसके लिए ये वाला कमांड है, लिस्ट डिस्क, Disk ठीक part है। list disk. लिस्ट डिस्क, राइट, हाँ। Clean. सो हाँ, सो इसको चेक करते हैं कैसे होता है, जस्टरडे आई शोड यू ना, लाइक कैसे होता है, लेट अस डू इट अगेन, ठीक है। सो वी विल पावर ऑन द सिस्टम हियर, है ना, एंड गो टू द बायोस मोड, और मे बी जस्ट पावर ऑन द सिस्टम, प्रेस शिफ्ट प्लस F10, ठीक है, जस्ट प्रेस शिफ्ट प्लस F10, यू विल एंटर द कमांड प्रॉम्प्ट, एंड व्हेन वंस यू एंटर द कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन Disk part. हाँ, देन टाइप द कमांड डिस्क पार्ट एंड लिस्ट डिस्क, है ना। और आइदर यू कैन यूज अ बूटेबल पेन ड्राइव आल्सो जस्ट टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब खाली कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए दो प्रोसेस है, या तो शॉर्टकट की यूज कीजिए शिफ्ट प्लस F10, या फिर एक बूटेबल वाला पेन ड्राइव लगाइए सिस्टम के अंदर, वहां पे बूटेबल पेन ड्राइव दिखेगा बायस मोड के अंदर, उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे ना, तो विंडोज का जो इंस्टॉलेशन इंटरफेस होगा ऐसा कुछ यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। फिर वहां से भी कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हो, तो दो प्रोसेस है, ठीक है। ये सेकंड वाला थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट एनीवेज सेकंड ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अगर आपका काम नहीं कर रहा है, शिफ्ट प्लस F10 काम नहीं कर रहा है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। Yeah. हाँ, Yes, sir. देखिए, हाँ, सो हियर आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक हाउ यू कैन गो, मतलब ये जो मेथड आपको मैं शो कर रहा हूँ ना, कि मतलब बूटेबल पेन ड्राइव यूज करके कैसे जाते हैं, ठीक है। सो अभी मान लीजिए मैंने बूटेबल पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया अपना, और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, है ना। जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट लेट सपोज दैट आई सेलेक्टेड माय बूटेबल पेन ड्राइव एंड आई प्रेस्ड एंटर. So this is the installation interface what I'm getting here. Go with next here, but we don't have to install now. We have to go to repair your computer, है ना, repair your computer. यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, कैसे होगा, just go to troubleshoot and you can हाँ, see ट्रबल command शूट, कमांड, यस सर। and यहाँ पे कमांड टाइप करना है डिस्क पार्ट Disk part. दिस पार्ट, This लिस्ट is डिस्क। and list disk, है ना। So just wait. सर Okay, we got it. And type the command list disk, ठीक है, स्पेस होगा बीच में and then press enter. So you can see like what is the disk partition style of यहाँ पे disk partition style क्या है GPT. बताइए, जीपीटी सर, GPT. GPT, है ना। जीपीटी। Exactly. So if you see the star under GPT, that means the partition style is GPT, or if you don't see star, that means the partition style is MBR. ठीक Yeah. है। तो MBR कब होना चाहिए, जब सर बूट मोड में, जब फर्मवेयर When we हमारा select लेगेसी बायोस है, हाँ ठीक है। BIOS, हाँ, सर जब बाद आपके में, हाँ लेगेसी, हाँ, जब लेगेसी फर्मवेयर जो मोड। है, हाँ, हमारा जो सिस्टम है उसमें लेगेसी बायोस वाला फर्मवेयर है, बायोस है फर्मवेयर, तब MBR होना चाहिए। और सिस्टम पे UEFI है तो क्या होना चाहिए, जीपीटी होना Star चाहिए, ठीक है। GPT. बस यही चीज याद रखना है आपको, ठीक है। यूईएफआई तो जीपीटी, बायोस है तो एमबीआर, सिंपल, ठीक है। तो वही Yes, चीज है, sir. दैट इज द थिंग। हाँ, मिसमैच कब होता है, मिसमैच इसका उल्टा हो जाएगा तो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जीपीटी आपका दिख रहा है पार्टीशन स्टाइल, बट आपका जो बायोस का, सॉरी, आपका फर्मवेयर है वो लेगेसी बायोस है, तो गलत हो गया, मिसमैच हो गया, ठीक है, तब प्रॉब्लम Yes. आता है।
So this is no, no, this is the thing what I've said, that if you have the UEFI firmware, that means the GPT should be there in as a disk partition style. But if you have a legacy BIOS firmware, that means the MBR should be there as a disk partition style there, right? And how you can check in the command prompt only by writing this command there. Okay. ओके सी सो यहाँ पे रिजल्ट मैच कर लेंगे। देखिए मैच या मिसमैच कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी, ये दिस इज बायोस मोड एंड डिस्क टाइप जीपीटी एमबीआर। सर थोड़ा सा स्पेस, हाँ sorry. हाँ या आई एम जस्ट मेकिंग इट प्रॉपर। ओके ठीक है सी हाँ सो सर। दिस इज द हाँ करेक्ट थिंग, लाइक इफ यू हैव द यूएफआई देन डिस्क टाइप डिस्क पार्टीशन स्टाइल शुड बी जीपीटी ओनली, तो मैच होगा। अगर लेगेसी बायोस है और एमबीआर है तो भी मैच होगा। बट अगर यूएफआई है और एमबीआर है तो मिसमैच, और लेगेसी बायोस है और जीपीटी है तो मिसमैच। Mismatch. ठीक है, दिस इज द थिंग है ना। सो ये पूरा एक पूरा थर्ड नंबर हमारा स्टेप हो गया, ठीक है, बड़ा सा। सो दिस इज द थिंग ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देयर वी कैन डिसेबल वन सेटिंग आल्सो। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जितना ट्रबल शूटिंग हो सकता है ना उतना कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सभी करना है। एक या ट्रबल शूटिंग आपने परफॉर्म किया, उसमें ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर बाकी का ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे। बट मैक्सिमम कितना चीजें कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो आपको याद रखना है क्या क्या करते हैं बेसिकली, ओके व्हाट थिंग्स वी डू। So we can disable the secure boot option in the UEFI, all of you, right? Secure in the UEFI, we have an option, no, everyone, secure boot. So you can go to the UEFI mode and you can disable the secure boot without any problem. See, let me show you like where is it? Secure boot option in UEFI. So like this, you can see here an option is there. Okay, secure boot. It is written as secure boot, and it is disabled or you can make it enable. ठीक है, तो अगर इनेबल है तो इसको डिसेबल करके ट्राई कीजिए सिस्टम को ऑन करने का। अगर ऑन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं ऑन हो रहा है, नहीं ऑन हो रहा है, दैट मींस योर डिफरेंट प्रॉब्लम इज देयर। ओके, इट इज गेटिंग ऑन, दैट मींस ओके। इफ इट इज नॉट टर्निंग ऑन, दैट मींस something else. Okay, something else can be the issue. Reseat the SSD. Okay, what we need to do, reseat your SSD, remove the SSD and properly insert it up, reinsert it after cleaning the slots and all everything. Okay, so clean the slot gently and reinsert properly, ये चीज करना है, सिंपल है, ठीक है। So these are maximum number of troubleshooting what we can perform in case of you're facing the issue of no bootable device found. No bootable device found का जो इशू आता है ना, वो वर्चुअल मशीन में भी आता है। वर्चुअल मशीन में कब आता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए एक वर्चुअल मशीन को हम लोग ऑन कर देते हैं कि बिना आईएसओ फाइल लगाए। एक काम करेंगे, क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को ऑन कर देंगे बिना आईएसओ फाइल का, क्या होगा, नो ऑन नहीं मीडिया, नहीं होगा। होगा, ऑन नहीं होगा, सर ऑन हो जाएगा बट हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं देगा। आउट लिख देगा। हाँ करप्ट करता है। देखिए, हाँ देखिए मान लीजिए कि एक नया वर्चुअल मशीन बना लेते हैं तुरंत से, ठीक है। यस। इसको नेक्स्ट, हाँ नया वर्चुअल मशीन है, इसको अगर ऑन कर देते, फिर अभी मैंने आईएसओ फाइल यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं किया, ओके, आई हैवंट कनेक्टेड एन आईएसओ फाइल, और यस। यहाँ इसको मैंने क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, सी क्या इश्यू हो रहा है, नो मीडिया का इशू, अटेम्प्ट टू स्टार्ट अप, नो मीडिया नो है ना। मीडिया। हाँ वो क्या कर रहा है, ये अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अप फ्रॉम, मतलब इसका मतलब क्या है ना कि वो पहले चेक कर रहा है कि हमारे वर्चुअल एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, फिर साटा रोम में चेक कर रहा है वो है भी नहीं है कि नहीं है, उस दो कहीं पे नहीं मिल रहा है, नेटवर्क में भी चेक कर रहा है, तो नेटवर्क का कनेक्शन यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कहीं से भी नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसमें नो मीडिया का इशू आ जा रहा है। नो मीडिया, नो मीडिया मतलब वही चीज है, नो बूटेबल, आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। So, यही होता है। हम्म। So if you face the issue of no bootable device found, that means just understand all of you that it is your SSD problem or it is your operating system problem then. Okay, ठीक है, the operating system का some of the commands I will just show you all of you, है ना। Just a moment. Let me make it here. Yeah, ठीक है। So this is your check your detection of SSD in the BIOS. boot order check करना है, ठीक है, secure boot को ऑफ कर लेंगे। Then boot mode, okay, disk partition style. Boot mode and disk partition style, these all the things we have to check it here. And reseat your SSD properly. ठीक है, so these are all the steps then all of it. Okay, now take the screenshot.
Wait a second. Yeah, not Done, sir. done. Okay. Yes, sir. Okay, and I think this all the hardware, most of the hardware troubleshooting done. Let me check like what next it is. Okay, see you. अब एक इश्यू यहाँ पे देखने को मिलता है, वेरी कॉमन इट इज ऑल ऑफ यू दैट सिस्टम फैन इज सो मच नॉइसी, है ना? सिस्टम का फैन जो हो रहा है बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है। ओके, सी, सो दिस इज नंबर थर्ड troubleshooting, सिस्टम फैन इज नॉइसी। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ सकता है? कोई बता सकते हैं मतलब ऐसा क्यों होगा? वाई सिस्टम फैन विल मेक सो मच ऑफ नॉइस? नॉइस का सर मतलब ऐसा सबसे नहीं कि पहले रैट। हाँ, तो इस ठीक है। बेसिकली फैन डस्ट नॉइस लगा तभी होगा, आता है जब मतलब ओएस तो का मतलब पर ज्यादा लोड लोड होगा, इस वजह से सर सबसे सीजी पहली बात तो सीपीयू ये रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा तो ओके ओके, वेट वेट, या अंकित, या जस्ट हाँ बताइए शिवचंद्र। फैन में डस्ट होगा तो इसमें ज्यादा नॉइज आएगा। दूसरा बात हाँ है, जब हम लोग का मतलब सीपीयू रिप्लेसमेंट जो आपने बोला था 55% का ऊपर आएगा, और कुछ मॉइस्चराइज होगा तो हम्म, और ओके इसमें ठीक नॉइज है। आएगा। ठीक है। हाँ अंकित, या बताइए अंकित। सर जैसे कि कोई भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं ना जिसमें ज्यादा रैम वगैरह यूज होता है, जैसे कि सर हम्म मान ली सपोज अभी कोई गेम पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल GTA वाई सिटी, जैसे ही उसको आप ओपन करेंगे और खेलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लैपटॉप है वो बहुत हीट जनरेट करता है, और वह जो हमारा फैन है वो सीपीयू को गर्म मतलब ठंडा करता है, जैसे एक और चीज आता है हम्म उसको कूलिंग पैड बोलते हैं सर, जिससे क्या हम्म होता है कि हमारा लैपटॉप जो है जितना गर्म होता है वो कूलिंग पैड उसको ठंडा करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप दोनों ने जो बताया सिंपल है कि लाइक मीन्स योर सिस्टम इज अंडर हैवी लोड, सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है ना, तब फैन नॉइस करेगा। नॉइस क्यों करेगा? कि बहुत स्पिन करता है, बहुत स्पीड में स्पिन करेगा ना, वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा स्पीड में वो स्पिन करेगा, ठीक है? सो इफ हाँ, इफ सिस्टम इज अंडर हैवी लोड देन योर फैन विल स्पिन वेरी फास्ट। सो इट विल, इफ इट इज स्पिनिंग वेरी फास्ट दैट ऑब्वियसली इट विल मेक सम नॉइज, मेक सम साउंड, राइट? सो फैन अगर स्पीड में घूम रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है, या तो सिस्टम ओवरलोड है, सिस्टम ओवरलोड, राइट? ये चीज है। और ये यूजुअली होता है गेमिंग लैपटॉप वगैरह में, तो बहुत ज्यादा देखा जाता है गेमिंग लैपटॉप में फैन का नॉइज बहुत आता है ना? क्योंकि उसमें गेम वगैरह रन करते हैं, प्रोसेसर पावरफुल रहता है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, डीडीआर रैम रहता है स्पेशली, है ना? तो हीट ज्यादा जनरेट होता है, ग्राफिक्स कार्ड का भी हीट। So much of heat is generated in a heavy end laptop like a gaming laptop or a heavy end PC, right? देखिए, थोड़ा प्रोफेशनल वाले लैपटॉप्स है, जैसे थोड़ा पतले वाले लैपटॉप जिसमें यू सीरीज का प्रोसेसर है, LPDDR रैम है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है, तो उसमें उसमें उतना ज्यादा हीट जनरेट नहीं होता है ना? बट अगर DDR रैम लगा हुआ है, HX सीरीज का प्रोसेसर है, राइट? सो हीट जनरेट होगा, है ना? तो और वो भी होता है कि लोड अगर ज्यादा पड़ रहा है तो और भी हीट जनरेट होगा, सिस्टम फैन स्पिन करेगा ज्यादा, नॉइस करेगा। ओके, व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ योर सिस्टम इज अंडर हैवी लोड, system fan will make some noise or if system is overheating then also system fan will make some noise because it will spin very fast just to reduce the heat, है ना? हीट को बाहर निकालने की बहुत ज्यादा स्पिन करता है वो, दैट्स व्हाई इट विल मेक नॉइज। तो टू प्रॉब्लम्स, either your system is under heavy load, either your system is ओवरहीटिंग। और ओवरहीटिंग होता है क्यों? है डस्ट की वजह से, ठीक है? ज्यादातर डस्ट की वजह से ओवरहीटिंग होता है। So because of dust, overheating can happen and your fan can make some noises. Okay, that is the thing. So causes, what are the causes? Dust buildup, high CPU or GPU utilization, fan bearing issue, लूज फैन और स्क्रूज। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, नॉइस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि खाली स्पिन करने का नॉइज आ रहा है, ऐसा भी होता है कि रैटलिंग साउंड आता है ना? रैटलिंग साउंड, ग्राइंडिंग साउंड आएगा फैन में से, राइट? इफ यू हियर सम रैटलिंग साउंड और ग्राइंडिंग साउंड इन द फैन, दैट मींस योर फैन इज फॉल्टी, है ना? मतलब फैन खराब हो जाएगा या फैन के बीच में कोई कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो कैसा साउंड आएगा? एक इरिटेटिंग सा साउंड आएगा ना, राइट? Yes. हाँ, दैट इज द थिंग। ओके, सो यू हैव टू चेक हार्डवेयर प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वैसा साउंड आ रहा है, ग्राइंडिंग या रैटलिंग का ऐसा, या कोई हार्डवेयर टूट चुका है या ब्रेक हो चुका है, वैसा साउंड आ रहा है, मतलब आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द हार्डवेयर, है ना? दैट इज सी। सो स्टेप वन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे द फर्स्ट थिंग वी कैन डू ऑल ऑफ यू दैट चेक द टेम्परेचर, है ना?
check temperature. Why? Because temperature is the most common reason of system fan noisy, right? इफ सिस्टम का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो नॉइज करेगा फैन, क्योंकि वो स्पिन भी उतना करेगा ना, राइट? इफ सिस्टम टेम्परेचर इज गोइंग वेरी हाई, सो इट विल मेक सम नॉइज, राइट? फैन विल। सो कैसे टेम्परेचर चेक करते हैं मेरे को बताइए तो, हाउ यू कैन चेक द टेम्परेचर? बायोस मैं मोड जो सर, अभी जो किए थे ना, जो बूट, जो सिस्टमेटिक था इसका, बूट मैनेजर का, हार्ड हार्ड ड्राइव था, उसमें जाके भी सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं। ओके। या और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हाँ, ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो एक क्या है, वन मेथड इज टू चेक इन द बायोस मोड ओनली, है ना? अब वो यूईएफआई हो या फिर लेगेसी बायोस हो, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। सो इन द लेगेसी बायोस और द यूईएफआई, यू कैन सी इट इज यूईएफआई, अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स, and you can check the temperature as it is given here, like CPU temperature, system temperatures, है ना? And how, what is the ideal temperature of it? Ideal कितना होता है? 35 to 55, लिखा है ना यहाँ पे, से 35 to 55 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल टेम्परेचर, राइट? इफ दिस मच इज टेम्परेचर देयर, दैट मीन्स नॉर्मल। 70 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ओवर हीटिंग कहते हैं उसको, ठीक है? हाँ, मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ओवर हीटिंग। 60 है, सी इफ यू हैव 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट टेम्परेचर, परसेंटेज सेल्सियस, राइट? 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस या आइदर 65 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिख रहा है, दैट इज ओके, इसको मतलब ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉट दैट मच प्रॉब्लम। बट 70 डिग्री ऊपर, उससे ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स, है ना? सो दैट इज व्हाट की ओवर हीटिंग इज देयर, है ना? सो जीपीयू का जो टेम्परेचर होता है ना, जीपीयू टेम्परेचर, इन सम ऑफ द लैपटॉप यू कैन चेक द जीपीयू टेम्परेचर इनसाइड द टास्क मैनेजर ओनली। टास्क मैनेजर में ही आपको जीपीयू का टेम्परेचर दिख जाएगा, इफ यू हैव अ डेडिकेटेड जीपीयू स्पेशली। अगर आपके सिस्टम में, है ना, इफ यू हैव अ डेडिकेटेड जीपीयू, तो you can check the temperature of GPU inside the task manager only. How to check? See all of you, if you go to performance and you come to GPU section, यहाँ पे GPU का section मिलेगा, and you can check the temperature. Okay, यहाँ पे temperature दिख जाएगा। In my case, I'm not having a dedicated GPU, right? You can see in this device which I'm using right now, no any dedicated GPU. It is basically an integrated GPU, right? So we don't have any temperature kind of thing here, like, but if you have a dedicated one, so you can check the temperature। इस जगह पे आपको टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, टेम्परेचर जीपीयू का, सीपीयू का नहीं मिलेगा। सीपीयू का और सिस्टम का अगर चेक करना है तो उसको बायोस मोड में ही चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक इन द बायोस मोड, और वी हैव सेवरल ऑप्शंस लाइक बाय यूजिंग द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन द सेंस एचडब्ल्यू मॉनिटर का एक एप्लीकेशन आता है, मतलब ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है? एचडब्ल्यू मॉनिटर इज वन ऑफ द ट्रस्टेड एप्लीकेशन, यू कैन यूज इट। एंड वन मोर एप्लीकेशन इज देयर, दैट इज कोड टेम्परेचर। अब इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशंस है, ओके, वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस, ओके, that you can install, you can check the temperature and also many things by the application only, right? But if you don't want to download any application, you can directly check in the BIOS or the UEFI mode, है ना? So just like it is written here, it will be there in the UEFI, है ना? So UEFI का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह भी दिखता है, ब्लैक ब्लैक थीम में दिखेगा आपको, है ना? सो यू कैन चेक ऑल ऑफ इट, ठीक है, लाइक इट इज, ये भी एक यूईफाई है, ठीक है, दिस इज यूईफाई आल्सो, सी। सो यहाँ पे दिख रहा है ना, यू कैन सी द सीपीयू टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो दैट इज व्हाट, है ना? यूईफाई में मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ब्लैक कलर में ओपन हो गया तो क्या है, यूईफाई है, ठीक है? यूईफाई ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है, दोनों दिखता है, ठीक है? यूजुअली बायोस मोड जो होता है ना, बायोस मोड कैसे दिखता है, थोड़ा ग्रे कलर का दिखता है, उसका थीम जो रहता है वो ग्रे रहता है ना? बायोस मोड थीम इज लाइक लिटिल बिट ग्रे, लेगेसी बायोस की बात कर रहे हैं, okay, but UEFI is like little bit modern. Some of the times it appears in bluish tone or it is in black theme or whatever, है ना? So this is your UEFI, you can check the temperature directly, ठीक है? इससे पता चल जाएगा डिवाइस ओवरहीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरहीट हो रहा है तो फिर उसका अलग से ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है ना? If device is overheating, then we have some more troubleshootings for that, like for cleaning the dust and all, right? Removing the unwanted like end task, है ना? We are just closing all the unwanted applications and all, right? Dust की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है overheating का, है ना? So we'll discuss overheating. We'll discuss. We have a dedicated troubleshooting for that. But as of now, see. So ये चीज हो गया, है ना? डस्ट वगैरह क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जस्ट एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट डस्ट इज द, मतलब 99% केसेस में डस्ट ही होता है। डस्ट की वजह से ओवर हीटिंग होता है, ठीक है? अब सिस्टम थोड़ा सा हीट तो करेगा ही ना, ऑब्वियसली। सिस्टम विल जनरेट सम हीट, बिकॉज प्रोसेसर है, रैम है, अगर हैवी एंड लैपटॉप है तो थोड़ा हीट तो आएगा ही आएगा, दैट इज वेरी कॉमन। बट इफ ओवर हीटिंग हैपेंस, तो ओवर कभी भी कोई लैपटॉप अपने आप ओवर हीट नहीं करता है, डस्ट की वजह से होता है, ओके? बिकॉज ऑफ डस्ट ओनली एवरी लैपटॉप और पीसी ओवर हीट्स,
है ना। सो जस्ट क्लीन ऑल द डस्ट। कहाँ कहाँ पे डस्ट डस्ट क्लीन करते हैं, जस्ट क्लीन द डस्ट ऑन सी लाइक सॉरी द वेंट्स, ठीक है। पहले तो एयर वेंट्स और फैंस, ये दो चीजें, है ना। क्लीन द डस्ट ऑन एयर वेंट्स। एयर वेंट यू नो ना एवरीवन, लाइक व्हाट इज एन एयर वेंट? Yes, sir. वेंट्स, है ना, लाइक वेंट्स। इन द लैपटॉप वी हैव कितना वेंट होता है लैपटॉप में? दो दो वेंट होता है ज्यादातर, है ना। दो Yes, तरह sir. का वेंट होता है, दो टाइप का वेंट होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ वेंट्स आर देयर इन द लैपटॉप। वन इज फॉर एयर इनटेक। एयर इनटेक के लिए एक वेंट होता है, ठीक है। और एक होता है वार्म एयर को बाहर निकालने के लिए, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए, दो तरह का वेंट होता है, ठीक है। मतलब Yes, एक sir. एक एक जो वेंट है जहाँ से गर्म हवा बाहर निकलता है हमारे लैपटॉप का। और एक जो वेंट होता है वो वो ठंडा हवा बाहर का हवा अंदर जाता है, अंदर मतलब लेते हैं। ऑक्सीजन। हाँ, दैट इज द थिंग, है ना। आपको दिख हॉट जाएगा, यू एयर कैन आउट सी। प्रेशर इन। सॉरी। हॉट एयर आउट प्रेशर इन। हॉट एयर, हाँ, हॉट एयर के लिए एक वेंट होता है जो बाहर निकलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने वाले लैपटॉप्स वगैरह जो होते थे, उसके साइड में एक वेंट रहता था, ठीक है। सी इसको, यस सर, यस सर, उससे पूरा गर्म हवा में आता है। कूलिंग फैन लगा होगा सर, कूलिंग फैन। हाँ, वही वही कूलिंग तो था फैन सर। रहता है। हाँ, सर उसी के वही ठीक वाला पीछे तो था, कूलिंग। लास्ट वाला। हाँ हाँ, वही है आई थिंक। कहाँ गया? सर ये वाला, एक सेकंड, ये वाला सर, ये वाला। हाँ वही। सॉरी, ये वाला। हाँ, एनीवे सब, हाँ, ये सेम ही है ना। सी यहाँ पे ये पुराने वाले लैपटॉप आते हैं, इसमें बड़ा सा वेंट रहता है थोड़ा, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा मोटा वाला लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप है। तो ये जो साइड में जो वेंट दिया हुआ ना, दिस इज, यहाँ से गर्म हवा निकलता है। आप यहाँ पे अपना हैंड प्लेस करके देखिएगा ना, वहाँ पे थोड़ा वार्म फील होगा। तो गर्म गर्म हवा निकलता है यहाँ से, ठीक है। एंड ये चीज है, देखिए जैसे ये वेंट है ना, ये दो तरह का वेंट आपको दिख जाएगा, जैसे अलग अलग जगह पे हो सकता है। मोस्टली जो लैपटॉप्स होते हैं उसके पीछे में जो वेंट होता है, ये वाला, ये एयर यस सर। इनटेक का वेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, एयर इनटेक का होता है, ठीक है। तो इससे बाहर का हवा अंदर जाता है। ये वाला जो वेंट दिख रहा है, ये वार्म एयर के लिए, बाहर निकालने के लिए गर्म हवा, दैट इज द थिंग, है ना। सो इसीलिए क्या सजेस्ट किया जाता है ना, कि अगर आप लैपटॉप को यूज कर रहे हैं बेड या सोफा पे, है ना, तो ना करे। हीटिंग होता है। हाँ, तो हीट नहीं हो, मतलब यूज नहीं करना पड़ता, नहीं यूज नहीं, बेड या सोफा पे यूज नहीं करना, सिंपल, है ना। क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा ना, ये वेंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो फिर अंदर कोई एयर इनटेक नहीं हो पाएगा, एयर फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो क्या होगा, हीट होगा, सिस्टम हीट होगा, ठीक है। तो सो सर वही होता है। एक्चुअली में तो हम लोगों को टेबल पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लैपटॉप के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि कूलिंग पैड ही यूज़ करना चाहिए। नहीं, वैसा वैसा सिनेरियो क्योंकि नहीं सर है, उसी जरूरी से नहीं। यार, हाँ ठीक है, कूलिंग पैड यूज करते हैं, क्योंकि कोई सर प्रॉब्लम अगर नहीं है। टेबल पे भी रहेगा तो सर इसका तो ब्लॉक ही होगा ना सर ये। नहीं नहीं, टेबल पे ब्लॉक नहीं होता है। इसके नीचे ये रहता है ना, ये पैड है ना, बेसिकली ये क्या है, ये दिस इज, अच्छा। इससे, हाँ, ये रहता है, इससे थोड़ा लैपटॉप और टेबल के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, ठीक यस है। सर, यस। हाँ, इससे रहता है थोड़ा स्पेस, मतलब आप समझिए कि कितने इंच का, मतलब हार्डली, मतलब आधे इंच का भी स्पेस नहीं रहता होगा, थोड़ा मतलब स्पेस रहता है एनीवेज, ठीक है। हाँ, तो अब सर बेड या ये सोफा अभी पे तो यूज, ये वाला यूज होता है सर, ये वाला फिर क्या यूज होता है सर, ये वाला जो है, ये वाला। वही चीज है, सेम चीज है। देखिए ये जो है ना, ये कीबोर्ड के ऊपर में है। जैसे मेरे डिवाइस में भी जो दिया हुआ है ना, वो कहीं कहीं पे भी जो आपको अभी के टाइम पे, जब पहले वाले लैपटॉप में क्या आता था, साइड में आता था एयर, जो गर्म हवा वाला वेंट है ना, वो साइड नहीं में सर, आता था। साइड अभी में नहीं सर, ये वाला बोल रहे हैं। विच वन? नहीं सर, सर ये वाला सर, ये वाला। ओके, अब वही चीज है, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये वही है, एयर बाहर निकालने, गर्म हवा के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है ना, डिस्प्ले है, ये स्क्रीन है, ठीक है। और ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड और स्क्रीन के बीच में एक वेंट दिया हुआ है, और ये यहीं हाँ। से गर्म हवा निकलता है, ये बाहर निकालने के लिए हवा, ठीक है। तो अगर आपको गर्म हवा वाला वेंट नहीं दिख रहा है, तो स्क्रीन और जो आपका कीबोर्ड है, उसके बीच में चेक कीजिए, वहां पे रहता है। अभी के टाइम पे मोस्टली ऐसा ही आता है डिजाइन में। मेरे भी जो डिवाइस में दिया हुआ है, ऐसा ही डिवाइस, ऐसा डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, आपके भी लैपटॉप में होगा मे बी, ठीक है। हाँ, और मोस्टली हाँ जो है। हाँ, एयर इनटेक इवेंट होता है, तो वो पीछे रहता है ज्यादातर, ठीक है। पहले लैपटॉप में ऐसे आता था, साइड में आता था, ठीक है। ओके, दैट इज द थिंग, ओके। सो वी हैव टू, इसमें क्या होता है ना, डस्ट जम जाता है, वेंट्स वगैरह है ना, उसमें बहुत ज्यादा धूल हो जाता है, डस्ट हो जाता है, दैट इज, है ना। डस्ट, और उसमें होता है ना, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, या फिर एक कॉटन जैसा, एक कॉटन, ब्लैक कलर का कॉटन, आप समझिए ना, मतलब कॉटन देखा ना आपने, रुई आपने,
तो एक यस ब्लैक सर। कलर, हाँ ब्लैक कलर का कॉटन समझिए, ब्लैक कलर का रुई ऐसा पूरा वैसा एक जम वहां पे ना फंस जाता है वैसा, ठीक है, वेंट्स में। तो उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, वो पूरा ब्लॉक कर देता है, दैट इज फिर ओवर हीटिंग होता है उससे। See what I'm saying all of you, that we simple we were talking about like we need to clean the vents. Okay, we have to clean the vents. In the laptop we are having two types of vents. One is for air intake, one is for air outgoing. Like this is two types of vents are there. है ना? We need to clean both the vents in the laptop. In the PC cabinet we also we have several vents, right? In the PC cabinet, just try to keep your PC cabinet just away from the wall. दीवार में उतना सटा के नहीं रखते, राइट? थोड़ा सा दीवार से हटा के रखेंगे, प्रॉपर एयर फ्लो, मेक श्योर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन शुड बी देयर, है ना, जस्ट टू अवॉइड ओवर हीटिंग, है ना, ओवर हीटिंग को अवॉइड करना, दैट इज एनी हाउ। ओके, सो दिस इज ठीक, टेम्परेचर, जस्ट चेक द टेम्परेचर, क्लीन द डस्ट एंड ऑल, है ना, एंड चेक द रनिंग प्रोग्रेस। अब क्या करना है, लाइक एज वी हैव डिस्कस दैट इफ सपोज योर सिस्टम इज अंडर हैवी लोड, सो ऑब्वियसली है ना, लाइक योर सिस्टम फैन विल मेक सम नॉइज। तो कैसे चेक करते हैं कि सिस्टम अंडर हैवी लोड है कि नहीं है? कैसे चेक होगा? सिंपल, इन द टास्क मैनेजर, राइट? अगर आपका सिस्टम लैग कर रहा है ना, इफ योर सिस्टम इज लैगिंग, इफ आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, क्या करते हैं उसमें? रिस्टार्ट कर देते हैं हम लोग। रिस्टार्ट कर देते हैं। तो रिस्टार्ट करने से पता ही तो होता क्या है एक्चुअल में? बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाते हैं। बंद हो जाता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो रिस्टार्ट करने से क्या होता है कि बैकग्राउंड में जितने प्रोसेस रन कर रहे होते हैं ना, वो बंद हो जाता है। जितना कैचे में आपका डेटा स्टोर रहता है, कैचे रैम क्या होता है, रैम में आपका जितना भी डेटा स्टोर है सारा क्लियर हो जाता है। दोबारा से जब लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, सब सर्विस स्टार्ट होता है दोबारा से, और रैम का जो कैचे डेटा होगा क्लियर हो जाएगा, सारा बैकग्राउंड प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता है। तो दोबारा से स्टार्ट होगा मतलब ठीक से चलेगा, दैट इज थिंग, है ना। सो दिस थिंग वी कैन चेक ऑल ऑफ यू लाइक इन द टास्क मैनेजर, दैट विच एप्लीकेशन दे आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ सीपीयू और हाई अमाउंट ऑफ जीपीयू, ठीक है। ऐसा कोई एप्लीकेशन आपको दिखता है टास्क मैनेजर में जो ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, या फिर टोटल सीपीयू परसेंटेज चेक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट गो टू द टास्क मैनेजर एंड चेक द टोटल सीपीयू परसेंटेज, ठीक है। सो जैसे when you will come to the task manager, you can see the how much of CPU is getting utilized, कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 20%, 16%, 25%, वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है, राइट, है ना। सो लाइक इफ यू सी मोर देन 50%, 50% से ज्यादा है, और 90% है, चलिए 90% है, इफ सपोज यू सी द सीपीयू यूटिलाइजेशन इफ 90% और 100%, दैट मीन्स क्या होगा, सिस्टम लैग, है ना। 90% 100% हो रहा है तो सिस्टम लैग करेगा, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट चलेगा, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो जल्दी ओपन नहीं होगा, राइट, यस वैसे ही सर। प्रॉब्लम होता है ना। देखिए इसको आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू लाइक इन द वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि हम लोगों ने प्रोसेसर बहुत ही कम अलोकेट किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है ना, हमेशा सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ज्यादा ही होता है। कहने का मतलब कि अगर आपका थोड़ा लो एंड का प्रोसेसर है, इफ यू हैव अ लो एंड प्रोसेसर विथ लेस नंबर ऑफ कोर्स, आपका कोर भी बहुत कम है प्रोसेसर में, है ना, एंड यू सीरीज का स्पेशली प्रोसेसर है, और उसमें भी एक थोड़ा सा लो ग्रेड वाला प्रोसेसर है, तो उसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है हमेशा, ठीक है। जितना हेवी एंड प्रोसेसर होगा उतना अच्छा रहता है। बट एनीवेज लेट मी शो यू, ठीक है, कैसे हाउ यू कैन चेक इट। हाँ, एंड इफ सपोज मोर बैक सो मेनी बैकग्राउंड प्रोसेसर्स आर रनिंग है, तो इसका भी एक रीजन होता है कि बहुत सारा बैकग्राउंड प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसमें भी सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि और सारे जितने बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि रैम को कंज्यूम करते हैं, सीपीयू कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सी ओके, जस्ट अ मोमेंट। Okay, see. Now if I check here in the task manager, if I go to task manager, more details, see, कितना दिख रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन, सी और फिर हाउ मच, 93 94। हाँ 93, 96, 80 ऐसे जा रहा है ना।
तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो मैंने नंबर ऑफ कोर असाइन किया ना, बहुत ही कम असाइन किया है। कितना असाइन किया मैंने, देखिए। इफ आई गो टू सेटिंग्स हियर, हाउ मेनी कोर्स, कितना असाइन किया मैंने? 2 ही कोर है यहाँ पे, सिर्फ टू, ओनली 2 कोर। सी नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना दिख रहा है, और नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर 1, मतलब 2 प्रोसेसर है जो 1 1 कोर यूज कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कोर कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 ही कोर है यहाँ पे। 2 कोर है, और इतना सारा, मतलब विंडोज का इतना सारा सर्विस रन कर रहा है, प्रोसेस रन कर रहा है। तो सिर्फ 2 ही कोर हमारा इतना सारा प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। तो लोड बढ़ेगा ना, राइट? प्रोसेसर कमजोर है, और यहाँ पे इतना सारा सर्विस रन कर रहे हैं, इतना एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, राइट? तो लोड यस। बढ़ेगा, राइट? लोड ज्यादा है ना? सो 60%, 55%। अभी तो चलिए ठीक है ना? एंड यू कैन सी कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, या एंटी मालवेयर, ये समथिंग। ठीक है, दिस इज कंज्यूमिंग मोर मोर सीपीयू, है ना? सो रियल चीज में क्या करते हैं, एंटी मालवेयर, ये है ना, मतलब इसको एंड टेस्ट तो नहीं किया जाता है, एंड टेस्ट होगा भी नहीं, क्योंकि सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपको यही चेक करना है कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है, सम एनी एप्लीकेशन इज देयर विच इज कंज्यूमिंग मोर सीपीयू, ज्यादा सीपीयू आपका कंज्यूम कर रहा है। मान लेते हैं कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं ना, ज्यादातर होता है। तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड में रन करता है, बहुत ज्यादा सीपीयू कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसको एंड टेस्ट करना होता है, एंड टेस्ट कर देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को एंड टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे राइट क्लिक कीजिए, एंड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यस। आपका लैपटॉप, हाँ, हैंग भी हो रहा है ना, मान लीजिए कि आप कोई लैपटॉप रन कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, फॉर सपोज यू आर रनिंग लैपटॉप, एनी एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसा होता है ना कि सम ऑफ द, लाइक, कभी कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने, इफ यू आर रनिंग VMware वर्कस्टेशन, तो ऊपर लिखा आएगा लाइक VMware वर्कस्टेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिस यस। पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, है ना? सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाई सीपीयू लोड, है ना? सीपीयू के लोड की वजह से होता है ऐसा प्रॉब्लम। सो एट दैट केस व्हाट यू कैन डू ना, लाइक यू कैन एंड टास्क, यू कम टू द टास्क मैनेजर, एंड देन राइट क्लिक एंड एंड टास्क दैट एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एंड टास्क करके बंद कर देना है, फिर दोबारा से ओपन कर सकते हैं, है ना? सो यू कैन चेक ऑल ऑफ यू, आप यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, लाइक विच एप्लीकेशंस आर कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड ऑल। ठीक है, सी इफ आई चेक इन द होस्ट मशीन, तो होस्ट मशीन में उतना कुछ नहीं है, क्योंकि होस्ट मशीन में, इन द होस्ट मशीन आई एम हैविंग टोटल 10 कोर्स, है ना? इफ आई शो यू लाइक हाउ मेनी कोर्स आर देयर इन माय होस्ट मशीन, टोटल 10 कोर्स, 10। ठीक है, सो उतना लोड नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड बिकॉज आई एम नॉट रनिंग सो मच ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन रन हो रहा है, राइट? यू कैन सी नॉर्मल एप्लीकेशंस, कोई गेम वगैरह तो रन नहीं कर रहे हैं, राइट? गेम रन करेंगे यहाँ पे, तब जाके ये सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना? मान लीजिए मैंने यहाँ पे GTA 5 रन कर दिया, क्या होगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, है ना? सो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम लोड। इससे पता चलता है, लाइक थ्रू दिस ओनली यू कैन चेक whether your system is under heavy load, and if suppose any application you found that it is taking too much of CPU, then simple right click and end task, khatam. Okay, so like this is how you can fix the problem of system heavy load, and then restart your laptop, restart your system, है ना? Improve airflow. ठीक है, what I said that just if you are using a laptop, no, all of you just try to use it on the desk only, टेबल वगैरह पे यूज कीजिए। लैपटॉप को बेड या सोफा पे यूज नहीं करते, दैट इज व्हाट, है ना? डोंट यूज इट ऑन अ बेड और सोफा, लाइक, है ना? और हार्ड सरफेस पे यूज करना है। एयर वेंट वगैरह आपके पास वो है, लाइक मीन्स की क्या कहते हैं, लाइक मीन्स व्हेन वी डू गेमिंग, व्हाट इज दैट, कूलिंग पैड। इफ यू हैव अ कूलिंग पैड देन यू कैन यूज इट, है ना? तो वो क्या होता है, लाइक जस्ट टू इम्प्रूव द एयर फ्लो एंड जस्ट टू रिड्यूस द हीट, उसमें सिस्टम का फैन नॉइज नहीं करेगा उतना, कूलिंग पैड यूज कर रहे हैं, है ना? दिस द थिंग, हाँ। एंड दीज आर ऑल द ट्रबल शूटिंग्स। ठीक है, एंड इसमें क्या करते हैं कि फॉल्टी फैन है तो रिप्लेस कर देंगे, फिर फॉल्ट फैन इज फॉल्टी ओनली, अब कैसे पता चलेगा फैन खराब है कि नहीं है? सिंपल है ना, लाइक इफ यू हियर सम ग्राइंडिंग, सॉरी, ग्राइंडिंग साउंड, रैटलिंग साउंड, ऐसा आपको साउंड आ रहा है ना? कुछ एनोइंग सा साउंड आ रहा है, कुछ इरिटेटिंग सा साउंड आ रहा है, मतलब वो फैन खराब हो चुका है, या तो उसका स्क्रू ढीला हो चुका है, या फैन का कोई कंपोनेंट डैमेज हो चुका है, या फैन का बेयरिंग का इश्यू है। So if any kind of annoying sound you hear, like means that the fan is faulty only. So fan को replace करवाना पड़ेगा, right? We have to hand over the laptop to the technician. They will just replace the fan and they will just provide it to you back. Okay. So system fan noisy का मतलब problem क्या पता चल रहा है? Like these are only the problems. Okay. Either overheating, either system under heavy load. यही दो चीज होता है। Overheating क्यों होगा? Why overheating? Because of dust. Okay. Mostly. यस। ठीक है? Yeah. All right. ठीक है. Clear everyone? All the steps? Yeah. Yes, sir. Okay. Hmm. All right. So this is improve airflow and replace faulty fan. This is step number. Okay, sorry. This is fix 5. No.
Okay, I think it is visible, all of you, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, take it then. Done, sir. ओके, देखिए एक एक टूल भी आता है ना, देर इज अ टूल, एक गन टाइप का टूल होता है जो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था, है ना? एक ऐसा गन टाइप का टूल रहता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, देखा है आप लोगों ने? एवरीवन, हैव यू सीन दैट? No, sir. यार सुना यार है। टेम्परेचर चेकिंग हाँ अगर, सर, वो एक Yes, sir. Yes, sir. उसमें आते हैं और वो, हाँ हाँ सर। ना, वो भी, हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर वगैरह पता चल जाएगा, मतलब ओवरऑल तो पता चल ही जाएगा कि कितना चल रहा है टेम्परेचर सिस्टम का, है ना? सी इस तरह का एक टूल आता है, एक गन टाइप का रहता है, दिस इज, है ना? अच्छा। एंड यू कैन चेक द टेम्परेचर हियर, ये बहुत ज्यादा यूज होता था, है ना? तो मिलता है कंपनी वगैरह में, तो यू कैन यूज इट, और बायोस मोड तो है ही, है ना? बायोस मोड में तो एक्यूरेटली पता चल जाएगा आपको। ओके, या ओके, ठीक है एवरीवन, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टेकन, ये सारा स्क्रीनशॉट हो गया एवरीवन, सभी का? जैसे मॉनिटर ऑन, थर्मोस्टेट को यूज करके हीट चेकिंग करेंगे। सॉरी, थर्मल, ये थर्मोस्टेट बोला जाता है ना इसको। थर्मल टूल, हाँ आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर अवेलेबल है कंपनी में तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो कोरोना का टाइम में इसको यूज कर रहे थे हम लोग। हाँ हाँ, कोरोना के टाइम पे यूज करते थे। नहीं, हॉस्पिटल वगैरह में तो अभी भी यूज होता है ना, हॉस्पिटल या मेडिकल्स में अभी भी होता है ना? अभी होता है टेम्परेचर देखने के लिए। टेम्परेचर चेक के लिए, राइट, या, है ना, बॉडी टेम्परेचर बेसिकली। एनीवेज, ठीक है, नो बोटेबल डिवाइस एंड दिस सिस्टम फैन इज नॉइजी, ठीक है? ऑल राइट देन एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे सेशन, एंड या, टुमारो इज संडे ओनली, विल मीट ऑन Okay. मंडे देन, ओके? या, ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, या, Thank you, sir. okay, okay, yeah, so thank थैंक you यू everyone, सर। thank you everyone, we'll meet on Monday only then, yeah, स्क्रीनशॉट नहीं thank लिया you. है। ओके सर, थैंक यू। Sorry, screenshot, नहीं लिया है सर, सॉरी। screenshot नहीं लिया, okay. सॉरी। Okay, then, yeah, session is completed. If you want to leave, like, you can leave it, everyone. Okay.